Students, we will start with exercise 7.1 of your chapter set theory. So, whatever we have learned during our explanation, that concepts you have to apply in this exercise. So, we have already learned that collections means set and collection of definite number is called as the set, and if the collections are not defined then they are not called as the sets. Okay, so let us see the exercise 7.1 and we will write why the following collections are called as set or why the following collections are not called as set. Okay, so we will write in this question that which all collections are set and which all are not set with reasons. Okay, so let us write the first question. So exercise 7.1, which of the following collections are set? So already I have discussed it. So let us write now. Okay, the collection of odd natural number less than 50. So I have already told that it is a set. Now the first question is collection of odd natural numbers less than 50. So this collection is a set. And why this is a set? The given collection is a set because every odd natural number will be included in the set and the collection is well defined. तो ये जो odd number natural numbers है इसमें क्या होगा, लेस देन 50 है, तो हमको तो ये डेफिनेट सबका मतलब हर एक स्टूडेंट को आप पूछोगे, हर एक पर्सन को पूछोगे तो वो सेम आंसर आपको देने वाला है. तो इसीलिए वो क्या हो गया, वो आपका वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि एवरी पर्सन विल गिव दैट आंसर इटसेल्फ. ओके, सो दिस इज अ सेट. ओके, and then second one, the collection is, now second one is all the intelligent girls in your school. So in this the collection is not a set because every people have different opinion about the intelligent girl, so it is not a well defined set क्योंकि हर एक पर्सन के ओपिनियन में हर एक दूसरे दूसरे गर्ल्स इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इसीलिए ये कोई डेफिनेट एग्जाम्पल नहीं है. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस collection is not a set. Okay, so second one is not a set. So let us write that. Now see the second answer. The given collection is not a set because the intelligence of girl is not decided and hence collection is not well defined. Okay, so this way you are going to write the statement with reason if you are asked. Okay, now third one is the collection of 7 colors of a rainbow. Collection of 7 colors of a rainbow. तो ये जो collection of 7 colors है Vibgyor, everybody knows it, isn't it? So this collection is a set. Okay, so for this what is the reason you should write? The collection is a set because every color of a rainbow will be included in the set and the collection is well defined. So जैसे कि मैंने फर्स्ट आंसर में आपको रीज़न लिख के दिया था उसी तरह से आपको रीज़न लिखने हैं. तो देखिए फर्स्ट में मैंने ऐसे लिख के दिया था, द गिवन कलेक्शन इज ए सेट बिकॉज एवरी ऑड नेचुरल नंबर विल बी इंक्लूडेड इन द सेट एंड द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. तो आप सी के लिए कैसे लिखोगे? सी के लिए आप लिखोगे द गिवन कलेक्शन इज अ सेट. नाउ सी the given collection is a set because every color of a rainbow will be included in the set and the collection is well defined. Okay, so this is your third answer.
Now the fourth one is all the easy problems of your textbook. Now here also I have told you कि every student will not find the questions easy, or every student can't find all the questions difficult. So this is also not decided. बहुत बहुत बच्चों को हर एक प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में इजी लगेंगे और बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगेंगे, इसीलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है. सो द कलेक्शन इज नॉट अ सेट. ओके, सो लेट अस राइट दिस. The given collection is not a set because the easy problems of textbook is not decided and hence collection is not well defined. Okay, now we'll see the last problem. Now the last question is all the wise ladies of your city. Now this also is different in everyone's opinion. Wise matlab chalak ladies, clever ladies. Okay, so people have different opinion about it. तो हर एक जो पर्सन है उनके ओपिनियन में हर एक अलग अलग लेडी इंटेलिजेंट है और वाइज है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट because the opinion of each and every person is different and it is not well defined. So let us write that. Now see, the given collection is not a set because the wise lady of city is not decided and hence collection is not well defined. So this is how you have to write the answer of this question with yes and no and with reasons. So with this we complete off with first question. Let us move to second one. Now second question is write true or false. First one, sets A, E, I, O, U and U, E, O, I, A are not the same. तो यहाँ पे आपको ये दोनों सेट्स को ऑब्जर्व करने हैं. तो आप देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 अल्फ़ाबेट्स आर देयर. सो इन बोथ द कर्ली ब्रैकेट्स यू हैव 5 अल्फ़ाबेट्स और दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. ओके, तो ये जो ए एक एलिमेंट है सेट का, ई इज अनदर एलिमेंट ऑफ ए सेट, आई इज एलिमेंट ऑफ ए सेट. तो ये जो ए, ई, आई, ओ, यू जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट ऑफ सेट्स. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आर देयर. हियर ऑल्सो यू कैन सी 5 एलिमेंट्स. Okay, and now you can also see that in this set whatever elements are present, the same elements are present over here. देखिए यहाँ A है, यहाँ पर भी A है. E, E, I, I, O, O and U, U. तो इसमें कैसे है कि all the vowels whatever is present in first set, यहाँ पर सेम वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड सेट. खाली क्या है, इनका प्लेस में चेंज है, प्लेसिंग में चेंज है ना. ए यहाँ पे फर्स्ट में आया है, यहाँ पे लास्ट में आया है. ई इज इन सेकेंड पोजिशन, हियर ई इज ऑल्सो इन सेकेंड पोजिशन, आई थर्ड, यहाँ पर आई फोर्थ में है. तो you can see that all the elements whatever is present in the first set is also present in the second set. तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे जो है यहाँ पर भी वो सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, सिर्फ इनके प्लेसेस में चेंजेस है. ठीक है, तो ऐसे सेट्स रहेंगे तो इन्हें हम कहते हैं दे आर सेम सेट्स. ये वाले दोनों सेट्स सेम हैं क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, सेट्स ए, ई, आई, ओ, यू एंड यू, ई, ओ, आई, ए आर नॉट द सेम. So in this statement what they are saying, these two sets are not same, but we know that these two sets are same irrespective of their places. प्लेसेस चेंज रहेंगे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट सेम है. सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सेट्स दिस एंड दिस आर नॉट द सेम. नो, दे आर द सेम. सो हियर यू विल हैव टू राइट फॉल्स.
ओके क्योंकि ये दोनों सेट सेम है और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर दे आर नॉट द सेट, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे आपको क्या लिखना है यहाँ पर, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेट्स 1 0 5 9 13 एंड 1 5 9 13 आर द सेम। सो यहाँ पर ये दोनों सेट्स को आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आर देयर, हियर only 4 elements are there. So from this only you can make out this that these sets are not same, है ना। और यहाँ कर क्या दिया है, आर द सेम। सो अगेन दिस स्टेटमेंट्स विल बी योर false. Now let us go for the third one. If B is a set of letters in the word statistics, then B will be STAIC. So let us see. तो ये वाला मैंने पहले ही आपको जब एक्सप्लेनेशन दिया था उस समय मैंने आपको बोला था कि कोई भी लेटर्स हो, कोई भी नंबर्स हो, यदि ट्वाइस दे आर देयर सो यू शुड राइट ओनली वंस। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर आपको दो बार दिखते हैं तो आपको सेट में वो एक ही बार लिखने हैं। तो लेट अस सी इफ दिस इज करेक्ट, दे हैव रिटन करेक्ट और नॉट। तो लेट अस से एस, ओके एस इज फर्स्ट, so we have written here T T A A, then again T has come, so you should not take it, ये आप नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने T लिख दिया है। फिर I तो लिख दिया आपने I, फिर S आया तो S आपने ऑलरेडी लिखा है तो इसको भी आपको इग्नोर करना है। फिर से T आ गया तो T फिर से आप नहीं लिखोगे। फिर I आ गया, I ऑलरेडी आपने एक बार लिख लिया है। C, so they have written C, then S already is written, that means this set is true because the alphabets which are present in the word statistics are not repeated। यहाँ पे repeated जो भी alphabets है उसे नहीं लिखा है और हमने word जो भी देखा है उसमें हमने देखा है कि ये set proper है, ठीक है। तो this statement is true। Now let us go to the fourth one. A set of first 4 prime number in a set builder form is given by 2 3 5 7. Okay, so these are the prime numbers, first 4. So 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number and 7 is a prime number. Okay, so this set is correct, but you can see that here they have mentioned set builder form. तो यहाँ पर इन्होंने जो सेट दिया है वो क्या फॉर्म है, ये टैबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको कैसे लिखने थे वो देखो, एक्स इज सच दैट, वो स्टेटमेंट वाइज लिखने थे। तो इससे हमको पता चलता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा है, ये टैबुलर फॉर्म में लिखा है। ऑल्दो द आंसर इज करेक्ट बट द सेट बिल्डर फॉर्म इज नॉट यूज्ड, so this statement is also false। okay, so here they should have written in set builder form। set builder form में हमें statement लिखना पड़ता है, जैसे x is such that वो अपने explanation के टाइम देखा था, ठीक है। now let us move to third question। let x be the set of letters of word Andhra Pradesh, fill in the blanks with element or not the element। okay, now T element यहाँ है क्या, आप देखिए T alphabet whether it is there in Andhra Pradesh, no, so just write down it is not the element of X। okay, now let us move to the next one। P is the element of Andhra Pradesh, so P, yes, P is there, so write down it is a element of X। now S is element of X or not an element of X, now you can see here S is there, so we can write it is an element of X। now see M is whether it is an element of X, तो यहाँ पर देखिए M है क्या किधर, no, so just
It is not an element of X. So like this you need to write and fill up the blanks with element or not an element. So first one is not an element because T was not there in this word. P is there, S is there, M is also not there in this word. So this is how you have to write whether it is an element or not an element of the given set. Okay, now write the following sets in the roster form. रोस्टर फॉर्म मतलब आपको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है. द सेट एक्स ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6. मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल लिखना है आपको. तो आप किस तरह से सेट लिखोगे? तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है. तो बहुत ईजी है इसे लिखना. तो चलिए हम इसके आंसर लिखते हैं. तो अब सेट x दिया है तो एज इट इज यू हैव टू राइट x लाइक दिस एंड देन यू हैव टू मेक अ कर्ली braces. Then you are going to write the answer. The set of x of first 5 multiples of 6. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. तो 6 का टेबल आप लिखिए फर्स्ट 5 नंबर्स तक. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 and 6 5 जा 30. So like this you have to write the first 5 multiples. तो देखिए यहाँ पर 5 multiples हो गए आपके. ठीक है. Now let us move to next one. The set A of whole numbers less than 25 which are multiples of 4. Again you have to write a set A. तो आप A लिख लोगे इस तरह से. आप सेट के लिए आप करली ब्रैकेट बना लोगे. फिर क्या है आपका होल नंबर्स लेस देन 25 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4. तो आपको ऐसे वो नंबर्स लिखने हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है और होल नंबर भी है. ओके, सो वी कैन गो फॉर मल्टीपल्स ऑफ 4. अगेन 4 का टेबल आप लिख सकते हो. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, then 4 6 जा 24. ओके, एंड दे हैव सेड लेस देन 25 चाहिए. तो यहाँ पर ही आपको ख़त्म करने हैं क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड देन 4 6 जा 24. ओके, सो राइट डाउन प्रॉपरली. तो आप देख पा रहे हो कितने हैं लेस देन 25 कितने नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आर देयर. सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 and 4 6 जा 24. So you need to write 6 numbers as the multiples of 4 less than 25. इसके बाद यदि आपने 4 7 जा किया तो वो आपका कितना आ जाएगा मल्टीपल 28 which is more than 25. इसलिए आपको यहीं पर स्टॉप करना है. ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लोज योर सेट विथ योर कर्ली ब्रैकेट. हमेशा आपको बाउंड्री लगाना है विथ कर्ली ब्रैकेट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. द सेट P of prime numbers between 15 and 30. So set P you have to write like this. Okay, make the curly bracket. And then you have to find out which one are the prime numbers between number 15 and 30. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो आप 2 3 5 7 नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि 15 और 30 के बीच वाले प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं. ठीक है. सो लेट अस राइट दैट. So 15 is not a prime number, 16 is not a prime number, then 17 is a prime number, 18 is not a prime number, 19 is a prime number, then 20 is not a prime number, 21 is not a prime number, 22 is not a prime number. You have 23 as prime number, then 24, 25, 26, 27, 28. All are composite numbers and you can write 29 as your prime number. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप
को 4 प्राइम नंबर मिले हैं जो कि these are present between 15 and 30. Okay, 4 prime numbers are there in between 15 and 30. Okay, so this is how you have to write the sets in, ये कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म में। और यहाँ पर आपने याद किया, यहाँ पर देखिए जो फॉल्स स्टेटमेंट में हमने लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म होता तो ये जो सेट है वो करेक्ट होता। ठीक है, तो हम ये सब रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट वन, द सेट बी ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इनफाइनाइट। सो प्लीज राइट डाउन बी एज योर सेट, then the curly bracket, then you will see which alphabets are there. So let us write I, then N, then F, then again I is repeated, तो वो नहीं लिखोगे, N भी नहीं लिखोगे, I भी नहीं लिखोगे, फिर T लिखोगे और E लिखोगे। ठीक है, and then close your curly bracket. Okay, so you have 5 elements. देखिए 1 2 3 4 5 elements from the word infinite. I लिखा पहले हमने, N लिखा, F लिखा। Okay, these 3 we have written, then I is repeated, इसलिए I को हमने छोड़ दिया। फिर N again it is repeated, so we have left it. I again repeated, so we have left that. T we have written and E we have written. Okay, so like this you have to write the sets in roster form. Now the next question is, write the following set in set builder form. तो इन इसे लिखने के लिए देखिए ऑलरेडी ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, A -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इसमें कि ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट ओनली वी विल अप्लाई इन बी। यू कैन सी 7 14 21 28 35 42। दिस मीन्स व्हाट इज दिस मीन्स, दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ जो 7 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स है। देखिए, तो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7. And next one is 2 3 5 7. So these 4 numbers are prime numbers between 1 and 10. Okay, then here Saturday Sunday, from this you can make out these are the last day of the week, or here S and S is present. Now you can see how we have to write this in set builder form. Set builder form में देखिए हमें स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना है। So as you can see these are all negative numbers. So you can write x is such that x is an integer between -7 and 0. You can also write x is such that x are नेगेटिव नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, नेगेटिव नंबर्स बिटवीन -7 and 0। -7 क्यों, क्योंकि देखिए -6 तक हमको दिया गया है और यहाँ पे -1 से है, इसीलिए हमने -7 and 0 बिटवीन लिखा है इसलिए। ठीक है, तो बिटवीन -7 and 0. Okay, this way you can write. You can also write, देखिए मैं आपको और करके 3 ways how you can write that I am showing you. X is such that x is such that, अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, -6 is less than equal to, and now see, x is such that x is less than equal to -6, and x is what, x is more than equal to -6 and less than equal to -1.
ओके, x इज मोर देन इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ ये वाला आपका लेस है, तो ये जब हम यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, x इज मोर देन इक्वल टू -6 एंड लेस देन इक्वल टू -1, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट यदि डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 वेज आपको बताया है कि इस स्टेटमेंट को हम 3 वेज में लिख सकते हैं। तो कोई भी आप लिखोगे तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, वो आपको करेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, सो this is how you have to write in set builder form. Now let us move to second question. Now see the B, C and D sets where I have written the sets in set builder form. So you can see 7, 14, 21, 28, 35, 42. Now these number you can make out that these are the multiples of 7. So we have written x is such that x is one of the first 6 multiples of 7. So these are the 6 multiples of 7. Okay. Now next is 2, 3, 5, 7. This also you can find out that these are the prime numbers. So we have written x is such that x is a prime number less than 8. Now next one is Saturday and Sunday. Y is equal to Saturday and Sunday. For this you can write that these are the days of week where it is starting with letter S. So x is such that x is a day starting with letter S. Okay, so like this you need to write in set builder form. Set builder form में आपको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना पड़ता है, और यहाँ पर जो ये जो नंबर्स दिए हैं ये है आपका रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म। ओके, तो आप यदि इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है, और ये स्टेटमेंट्स फॉर्म करना भी बहुत इजी है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वेन एवर यू सी द सेट्स यू शुड हैव द आइडिया। जैसे ही आप सेट्स को देखोगे तो आपको आइडिया आना चाहिए तो ये किस पे क्या हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन। Now 6th question is, if A is equal to x such that x is even number less than 20. Even number less than 20. Fill in the blanks with element or not an element. So just see what it is saying. This set is saying in a set builder form, x is such that x is even number less than 20. सो इवन नंबर लेस देन 20, तो आप इसका एक टैबुलर फॉर्म में आप सेट बना सकते हो। तो इवन नंबर में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2, 4, 0 भी आ जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8, देन 10, देन 12, देन 14, देन 16, देन 18. Less and like this, the set will be like this. तो आपको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप टैबुलर फॉर्म में इसको लिख लोगे। x is such that x is even number less than 20. So 0 to all the even numbers you have to write 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, then 14, then 16, 18. ओके, एंड लेस देन 20 बोला है, तो आप 20 के जगह नहीं जाओगे, तो आपका ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 12-a. नाउ यू कैन सी हियर 12 है क्या इसमें, 12 इज देयर, सो यू कैन राइट 12 इज द, क्या लिखोगे यहाँ पर, 12 इज द एलिमेंट ऑफ A. Now 7 is here, no, so you can write 7 is not an element of. Okay, 7 is not an element of. Now 22 is not an element of.
ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कैसे हम ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. फिर ज़ीरो, देन ए, यस ज़ीरो इज एन एलिमेंट, सो राइट डाउन इट इज एन एलिमेंट. ओके, सो जब भी आपको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आप क्या करना, उसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, तो दिस वेदर इट इज एलिमेंट और नॉट, दिस विल बी इजी फॉर यू. ओके, so like this you have to go for this question. So with this we complete off with exercise 7.1. Then we will go for the next concepts, that is types of set. So let us just learn about the types of sets. तो आपका जो ये एक्सरसाइज 7.1 है, इसे ये बहुत इजी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए. तो देखिए ये सबसे इजी चैप्टर आपको लगेगा. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट वेयर यू हैव टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स. सो यू हैव टू लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सेट. आपको 4 टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में आपके लेसन में दिया गया है, तो आप इन सभी टाइप्स को आप पढ़ोगे और बेस्ड ऑन दिस टाइप्स ऑफ सेट यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट सेट इज योर फाइनाइट सेट, सेकंड इज इनफाइनाइट सेट, थर्ड इज एम्प्टी सेट्स, and the last one is cardinality. So all these sets are the types of sets. Okay, so there are 4 types of sets. Now each set, ये जो हर एक सेट को मैं एग्जाम्पल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, नाउ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, इस सेट को, जिस सेट को बोलते हैं, उस सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड एंड दे आर वेल डिफाइंड एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दिस इज अ फाइनाइट सेट. तो आप देख पा रहे हो, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, द सेट एक्स ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. तो आपने उस हिसाब से आपने यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. Okay, so only first 5 multiples were asked. You have written the first 5 multiples. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चला है कि आपका जो यहाँ पे सेट में जो आपने मल्टीपल्स लिखे हैं ये काउंटेबल है. 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर काउंटेबल. सो 5 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, यहाँ पर 5 एलिमेंट है एंड दैट इज काउंटेबल. ओके, सो if this type of sets are there where the elements can be counted, okay, so and they are well defined, so this type of set is called as finite set. तो ये जैसे सेट होते हैं, इन सेट में पर्टिकुलर आपको एक सेट दिया होता है, वो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं. ठीक है, तो दिस टाइप इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट. नाउ व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट. अब इनफाइनाइट सेट में आप देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स तो वेल डिफाइंड नहीं है. नेचुरल नंबर्स की तो कोई भी एंड नहीं है ना, नंबर्स का तो कोई एंड नहीं है. तो सो दे आर कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सेट. Okay, so you can see x is equal to 1 2, these all are natural numbers. Okay, these are the natural number and still this 3 dots are there, that means more natural numbers will come up, है ना. सो ऑन दिया है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो भी एलिमेंट्स है दे आर नॉट काउंटेबल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सो ऑन दिया है. सो यू डोंट नो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, सो दिस इज अनकाउंटेबल एंड दिस इज नॉट डिफाइंड. सो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट. ओके, और इसी स्टेटमेंट को यदि हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो यू विल फाइंड दैट दिस बिकम्स योर फाइनाइट सेट. नाउ सी
set of natural numbers. I have told you that this is an infinite set. Now the same this statement I have twisted it. Okay, so the set of first 10 natural number, I have written what? The set of first 10 natural number. Now I have written the set first 10 natural number from 1 to 10. I have written it. Now you have these elements inside your set and these can be countable. तो यहाँ पर जो आपने सेट लिखे हैं ये काउंटेबल है क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट्स नहीं दिए हैं. Okay, so this becomes your finite. This becomes your finite set. Okay, so this statement, if you twist it, first 10 नेचुरल में लिखो तो आपका वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है. So this way you can say which one is infinite and which one is finite. In infinite you don't have the countable elements और यहाँ पे क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं. तो this is the difference between finite and infinite set. Now the third type of set is empty set. The other name is null set. Okay, so let us see example. X is a set of whole numbers less than 0. Okay, now just repeat the statement. X is a set of whole numbers less than 0. तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है. देन लेस देन 0, that means the numbers will be like this, -1, -2, like this. So -1 and -2 are not whole numbers, they are integers. Okay, so that means what will happen? That means X will not have any element because no number is less than 0. तो X के जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि होल नंबर्स लेस देन 0 is not there. Okay, so for this statement you have to write like this. X is equal to सेट का साइन लिया, इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है और then you close down your set with your curly bracket. So this type of your set is known as empty set. कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, है ना. तो this is empty set. तो whenever you have to represent empty set you can go for this type or you can go for this type of symbol as well. तो ऐसे टाइप का सिंबल भी आप बना सकते हो और इस तरह के सिंबल भी बना सकते हो. तो ये जो सिंबल है इसे हम क्या बोलते हैं? फाई. ओके, तो ये जो सिंबल इसको हम रीड कैसे करेंगे? इसको हम बोलते हैं फाई. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फाई. तो कभी कभी ऐसा सेट होता है जिसमें आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं, तो दैट टाइम यू से दैट दिस टाइप ऑफ सेट इज एन empty set or null set. Okay, so this type of set can be given to you where the whole numbers will be asked which whole number is less than 0. So there are no whole numbers which is less than 0. So that is why the set is empty set. Okay, now let us move to the next type of set. Now the cardinality. Cardinality means nothing but number of elements that are present in the set and usually this happens for your finite set. finite set में ही आपको number of elements well defined है ना, इसीलिए cardinality आपको finite set में ही मिलेगा. तो आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 ये आपने लिया था फाइनाइट सेट में. फाइनाइट सेट जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय हमने ये एग्जाम्पल लिया था. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25. Okay, so these numbers we have written because this is the set first 5 multiples of 5. Okay, now for cardinality what you need to write is, देखिए ये जो x set है, x set के सामने आपको इस तरह से लिखना है n x means number of. Okay, n x. Okay, now equal to where from I got 5. See यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5. So that is why I have written 5. Okay, तो यहाँ पे यदि कुछ भी और चेंजेस होता तो you can
also go for that. First 6 multiples of, suppose 6 multiples of 5. ओके, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो जाते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते. ठीक है, तो अब आपका nx कितना हो गया, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पर आपका nx हो जाता 6. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर योर cardinality. तो 4 टाइप्स यू अंडरस्टूड, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, empty set or null set, and cardinality. So finite set where you have the number of elements are countable. Infinite set, the number of elements are not countable. And for an empty set, you don't have any element inside your set. And the last one is cardinality, that is the number of elements that are present in your set. So these are the 4 types of things what you have learned, and we will now apply this concept in exercise 7.2. okay, so let us see the first question of exercise 7.2. Identify the following sets as finite, infinite, or empty sets. So you have to just go through these sets, and you have to identify whether the set is finite, infinite, or empty set. Okay, so let us see the first one. A is equal to x is such that x is greater than 9 and x is element of natural number. Okay, so what is written over here, a is equal to, means set A is equal to x is such that, ये जो vertical line है इसे क्या करते हैं, कहते हैं is such that. okay, x is such that x is greater than 9 and x is an element of n or natural number. ठीक है, so let us see how we can write this in our tabular form. Now see the first question. A is equal to x is such that x is greater than 9 and x is an element of n. So element of n means natural number. So they have said that it should be, natural number should be greater than 9. So we have written greater than 9, 10, 11, 12, 13, and the next numbers all are greater than 9. So this is, there is no end. इसमें कोई end ही नहीं है. तो we have to put this so on. Okay, because 13, then 14, 15, 16, 2000, 3000, 4000, every number is greater than 9. So there is no end of the natural numbers. So that is why you cannot count the elements in the set. So this is an infinite set. Okay, so this set is an infinite set. Now if you look for the next one, x is such that x is an even prime number. So this you have already have the knowledge that only one even prime number is there, that is 2. एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2. रेस्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि वो हर एक टेबल में आता है. ठीक है, तो एक ही, दिस 2 इज एन ओनली वन इवन प्राइम नंबर. सो खाली एक ही आपको एलिमेंट मिला है यहाँ पे, एंड दिस कैन बी काउंटेबल. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि दिस is complying with this statement, even prime number is only one, that is 2. So this is a finite set. Okay, you can count the element inside the set. Okay, so this is the first 2 question. Now see the third one. B is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and so on. So from so on only you can make out that this is an infinite set, because the elements are not countable. Now let us move to C1. C is equal to x such that x is greater than equal to -4 and less than equal to -2.
2 and x is an element of whole number. So as from the statement you can say that -2, -3, -4. Okay, so like this you can make the set, but they have also mentioned that x should be a whole number. So these are the integers. Okay, these are the integers, not the whole number. So this set cannot be written. Okay, so this set cannot be रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ दिया है ना, इसके वजह से हम इस सेट को नहीं लिख सकते. यदि यहाँ तक उन्होंने दिया होता तो वी कुड हैव रिटर्न द सेट, तो देन इट विल बी अ फाइनाइट सेट. बट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मेंशन किया है, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी हम सेट ले रहे हैं वो सेट इसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, इस मैच नहीं कर पा रहा है. इसलिए हम इसे लिखते हैं C इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स हमको नहीं मिल रहे हैं. बिकॉज एज वी हैव टेकन आउट द एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट को हमने लिया था, लेकिन ये तीनों एलिमेंट क्या है, होल नंबर नहीं है. सो हम इस सेट को नहीं लिख सकते. ठीक है, तो इसलिए ये हमें एम्प्टी सेट लिखना पड़ेगा. दिस इज एन एम्प्टी सेट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू ई. नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 0. ओके, सो लेस देन 0 तो ये नंबर्स होंगे. देन अगेन द फर्दर स्टेटमेंट इज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर. दीज नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ये तो इंटीजर्स है, तो हम इस तरह का सेट इसमें नहीं लिख सकते. So then this will also become your empty set. So this is an empty set. क्यों empty set हो गया, क्योंकि हमने -1 -2 सेट लिखा था, लेकिन एक वो होल नंबर्स नहीं है, इसीलिए this is an empty set. Okay, now you can see the set is x is such that x is a vowel in the word rhythm. तो ये जो रिदम्स का वर्ड दिया है आपको, रिदम वर्ड, इसमें कौन से वॉवेल्स है, तो आपको वॉवेल्स पता है, ए ई आई ओ यू. तो आप ढूंढिए यहाँ पे ए है क्या, नहीं. ई है नहीं, आई है नहीं, ओ है नहीं, यू है नहीं. सो वॉवेल्स आर नॉट देयर इन दिस वर्ड, isn't it? So you can write this also as a null set, because no vowels are there in the word rhythm. Okay, so this is also, therefore this is an empty set. Okay, so this is how you have to identify whether the sets are finite, infinite or empty. Okay, now let us move to second one. Now you can see the set A is equal to x such that x is the element of whole number and x square is less than 26. तो आपको यहाँ पे जो x होल नंबर दिया है, इसका मतलब आपको ये होल नंबर्स आपको लेने हैं. कौन से 0 1 2 3 4 एंड 5. क्यों 5 तक लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, मतलब इन सभी नंबर्स के स्क्वायर को निकालने हैं. तो हम जैसे ही इन सभी के स्क्वायर को निकालेंगे, तो देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0. 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1. देन 2 स्क्वायर गिव्स यू 4. ओके, तो ये सब स्क्वायर होगा इस तरह से, ऐसे स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, मतलब 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 26. तो जैसे ही हमने 5 स्क्वायर निकाला तो उसका 25 आ गया, लेकिन हम आगे 6 स्क्वायर निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपका 6 6 ज़ा 36. सो दैट विल बी बिगर देन 26, है ना. तो इसीलिए आपको यहाँ पे 5 स्क्वायर तक ही रुकना है. ठीक है, तो 0 स्क्वायर क्यों लिया हमने, 0 स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे होल नंबर मेंशन किया है.
ठीक है, होल नंबर है इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है जो भी स्क्वायर आप कर रहे हो वो 26 से कम होना चाहिए। तो 25 तक हमने 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आया, विच इज लेस देन 26। सो दिस इज योर आंसर। सो लेट अस जस्ट रब दिस। नाउ दिस इज योर एक्चुअल आंसर। तो इस तरह से आपको सेट बनाने हैं। और अब क्या बोला है, फाइंड देयर कार्डिनलिटी। सो हाउ यू विल फाइंड देयर कार्डिनलिटी? तो कार्डिनलिटी विल बी लाइक दिस, n a. Now you have to count the numbers 1 2 3 4 5 6. So your cardinality will be 6. Okay, so this is how you have to write the tabular form of the set and the cardinality. Okay, so this is your first question. Let us move to second one. Now see the B1. X is such that X is a letter of the word cardinal. Now you have to find out the letters. So C we have written A, R, D, I, okay, N. Okay, now A is repeated. A देखिए रिपीट हो गया है तो हमने इसे नहीं लिया है। ठीक है, सो ए रिपीट है इसलिए हमें पता है कि एक बार ही एक अल्फ़ाबेट लेना है। एक अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, कोई भी सेम नंबर बार बार नहीं लिखना है। तो ए जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा था इसलिए ए को हमने ओमिट कर दिया है। अब दूसरा है एल। ओके, तो हर एक अल्फ़ाबेट को हमने लिख लिया है विच आर नॉट रिपीटेड। तो ये जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं ये कोई भी रिपीट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7. So as you can write the tabular form like this, and your cardinal will be n, that is number of elements in set y is equal to 7. 7 कहाँ से आया, ये हमको ये काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7. 7 elements are there. So the cardinality is 7. So write down this. Now you can see the third question where you have set A is equal to x is such that 4x minus 24 is equal to 0 and x is an element of n. तो इसमें क्या करना है, आपको ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये इक्वेशन को आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या बोला है इन्होंने, x should be the element of n. So what you will do, you will start from number 1. तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, पुट x इज इक्वल टू 1. तो मैंने क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो मैंने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 1 लिखा मैंने यहाँ पर। अब क्या करूँगी, अब जहाँ पे ये इक्वेशन में x है ना वहाँ पे मैं 1 को प्लेस करूँगी। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप 4, यहाँ जो 4 लिखा था वो 4 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब x के बदले मैंने क्या पुट करना है, मुझे 1, तो मैंने देखिए यहाँ पे 1 पुट कर दिया है। फिर क्या है, माइनस है, माइनस को लिख दिया है। फिर क्या है, 24 है, फिर मैंने 24 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पुट किया है। तो अब देखिए, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे ही हमने सॉल्व किया हमको आंसर क्या मिला है, -20। लेकिन हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो मुझे तो -20 मिला है, मतलब x1 लेंगे तो ये वाला जो केस है ये सॉल्व नहीं होता है। ओके, दिस इज नॉट मैचिंग विथ दिस इक्वेशन। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं अब इस 1 के बदले में मैं इसे 2 लिखूँगी। देखिए अब मैं ये 1 को मैंने यहाँ पर रब कर दिया और मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, यही इक्वेशन में 2 को फिर से प्लेस करूँगी। देखिए 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। x के बदले मैं क्या लिखूँगी, अब यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया है तो 2 लिख दूँगी। फिर माइनस लिखूँगी और फिर लिखूँगी 24। ठीक है, तो आप देखिए 8 माइनस 24, सो 8 माइनस 24 क्या होता है, -16, है ना। देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग 0। ओके,
तो ये नंबर भी आप इस इक्वेशन में पुट अप नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, आप नंबर 3 ले लोगे यहाँ पर। देखिए मैंने फिर 3 पुटअप किया तो मुझे -12 मिल रहा है, फिर भी 0 नहीं मिल रहा है। फिर मैंने 4 पुटअप किया तो भी मुझे -8 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। फिर मैं क्या करूँगी, 5 पुटअप करूँगी। तो आप देखिए फिर मैंने क्या किया, x को पुटअप किया तो मुझे -4 मिल रहा है। मैंने फिर 6 को पुटअप किया तो मुझे 0 मिल रहा है। अब देखिए, अब जो ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पर, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को, ये वाला जो x को 6 पुटअप करेंगे तो ये स्टेटमेंट को ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो नंबर लिखूँगी, ये नंबर आई विल put as 6 because if we are taking 6 then only we can get the answer as 0. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 6 ले लिया है। ठीक है, so only one element can be there in this set, so here the cardinality will be 1 क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1. So this is your C question. The next one is your last question, that is the D one. Last question is b is equal to x is such that x square is less than 10 and x should be the element of an integer. Okay, integer means क्या होता है, प्लस पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 10. So if you go for the squaring, स्क्वायर का टेबल अब जाओगे तो क्या देखते हो आप कि 3 3 ज़ा 9 आता है ना, 4 4 ज़ा 16 हो जाता है. तो हम 3 तक का नंबर्स हम ले सकते हैं. तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इंटीजर्स जैसे कि प्लस और माइनस नंबर्स ले लिए हैं. और इफ़ यू स्क्वायर दिस नंबर्स, तो -3 को यदि आपने स्क्वायर किया तो 9 होगा, -2 को स्क्वायर किया तो 4, -1 को स्क्वायर किया तो 1, 0 is 0, 1 again is 1, 2 is 4, 3 is 9. So all the squaring numbers will be less than 10 and these all are the integers. Okay, so the set will be consisting of -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Okay, now the cardinality will be, कार्डिनलिटी क्या होगा आपका, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, सो कार्डिनलिटी इज 7. सो दिस इज हाउ यू नीड टू go for this question, write in tabular form and find their cardinality. So you always read this statements properly and then only form the set, otherwise you may go wrong. Okay, so this is how you have to solve the question number 2. Now let us go for question number 3. Now the third question is find nx, that means cardinality. Cardinality whenever you have to find, that means the set should be finite. आपका जो सेट होना चाहिए वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, तो ही आप कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 0. ओके, सो हियर द कार्डिनलिटी विल बी 1 बिकॉज 1 एलिमेंट इज हियर. ओके, second one is x is equal to, x is such that x is a letter of the word intersection. तो इंटरसेक्शन को हमने इस तरह से इसका टैबुलर फॉर्म बना लिया है. तो आप देख सकते हो INTER, दिस we have written, then S also we have written, then E is repeated so we have omitted that, then C we have taken, T is repeated, I is repeated, O we have written and N is again repeated. Okay, तो अब देखिए कितना होता है, यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. So your cardinality is 8. Okay, because this is a finite set. Now see the C1. X is such that x is an even number and also divisible by 0. So even number means any even number can be there. So this is not defined, isn't it? This is an infinite set, so no count can be done. तो यहाँ पर इसलिए हम cardinality of x
इज नॉट डिफाइंड लिख देंगे, ठीक है। हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 फिर सो ऑन है, सो वी कैन नॉट काउंट, सो दैट इज वाई वी हैव टू राइट नॉट डिफाइंड, ओके। x is equal to, x is such that x is a 3-digit number formed by the digits 5 6 8 without repetition। तो ये 3 डिजिट्स आपको दिए गए हैं, इससे आपको 3-digit नंबर पहले फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। तो देखिए मैंने ये फॉर्म कर लिया है 3-digit नंबर, ये 3 डिजिट्स है, तो हमें 3-digit नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए 568, 586, then 685, 658, 856 and 865. So these all numbers can be formed using 5 6 8 without repetition. एक भी नंबर में रिपीटेड डिजिट्स नहीं है। सो द कार्डिनलिटी इज, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, सो 6 नंबर्स आर देयर, सो दिस इज योर कार्डिनलिटी, ओके। नाउ जो इक्वेशन इज देयर, हियर ऑल्सो यू हैव द इक्वेशन जो हमने पहले एक बार किया था, है ना, पुट x इज इक्वल टू करके, वैसे टाइप का क्वेश्चन है देखिए। एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, so you can put the value of x as positive number also, negative number also। तो जब भी हम पॉजिटिव नंबर, देखिए मैंने यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1 किया है और ये हमारा इक्वेशन है। तो हमने 9 लिया पहले और x के बदले हमने 1 डाला है और प्लस 36 किया है, तो हमारा आंसर आता है 45। तो हम देख सकते हैं कि जो यदि हमने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स लिया है तो हमेशा ये जो वैल्यू है ये बड़ा ही होते, ये बड़ा नंबर्स जो वैल्यू है वो बिगर होते जाएंगे, ज़ीरो में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम यदि x को नेगेटिव नंबर्स लेते हैं x के लिए तो शायद हमें ज़ीरो मिल सकता है। तो इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को हम नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेंगे तो जो वैल्यू है वो बिगर आता जाएगा, है ना। देखिए 1 से ही 45 आ रहा है तो ज़ीरो तो हमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम x को नेगेटिव नंबर्स लेंगे। अब आप देख सकते हो कि मैंने x को -1 ले लिया है, देन आई हैव पुट इट इन दिस इक्वेशन। सो -1, 9 इंटू -1 प्लस 36, so it gives you 27. Here I have taken -2, it is giving you 18. So this is not giving 0, so these two numbers cannot be taken. Let us go further. अब देखिए मैंने यहाँ पर -3 ले लिया है, जब मैंने x की जगह -3 को पुट किया है तो आई एम गेटिंग 9, so this is also not valid. Now if I am taking -4, so see -4 I am getting 0 for the equation. So only this -4 can be the element of this set, okay। So -4 हम x के प्लेस पे रखेंगे तो हमें 0 मिलने वाला है। तो only one element can verify this equation, so you can write that cardinal is only one, एक ही एलिमेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पर 1 लिखने हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू, x इज सच दैट 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x शुड बी ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर, ओके। सो यहाँ पर जो x का जो हम पुट करके कर रहे हैं थे ना इक्वेशन में, उसमें क्या होना चाहिए, x का जो भी हम वैल्यू लेते हैं 1 2 3, यही 3 नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर हम रखेंगे यहाँ पर, सो दैट वी कैन गेट 0। नाउ सी, इफ वी आर पुटिंग 0 1 2 3 एज योर x वैल्यू, x का वैल्यू हमने यदि 3 वैल्यूज़ लिए हैं तो 4x क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4x हो जाएगा 4 इंटू 0, सो लेट अस राइट दिस, x should be less than 3, so it should be what, it should be 0 1 2 3, okay। Now 4x should be
greater than 0. So if we go for 4x, so 4 into 0, 4 into 0, then 4 into 1, then 4 into 2 and 4 into 3. ये जो 4 है इसको हमने ले लिया और इससे इसको इंटू कर दिया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, 4x का, दिस शुड बी 0, 4, 8 एंड 12. नाउ यू कैन सी, ये देखिए ये 0 से इक्वल है और 0 के ग्रेटर भी है, ओके। तो एज यू कैन सी द सेट विल बी, ऐसे सेट हो जाएगा इसका 0, 4, 8, 12, okay, like this. The set will be like this. So you can write the set like this and you can see these all are whole numbers. ये सभी whole numbers हैं और आपको यहाँ पर जो cardinality मिल रहा है ये है number of elements 1, 2, 3, 4. So it is 4. Okay. Now let us go to the last sum of this exercise. Now you can see that last question is x is such that x is a prime number having 3 divisors. So ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसका डिवाइजर्स 3 हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट. Now cardinality, no elements are there, that is why cardinality is 0. Okay, so with this we complete off with the chapter set theory. So please go through the lesson, go through the exercises. It is very easy and please try to practice the exercises often. Okay, thank you.